वेलकम टू माय चैनल अ साइंटिफिक मित्रा। हम इस चैनल के माध्यम से चैप्टर 1 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। सो वी लुक एट आवर सराउंडिंग। जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर्स हैं। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं साइंटिस्ट ने देखा उन सभी चीज़ों को मैटर के रूप में कंसीडर किया। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, बुक वी रीड, पेंसिल वी कैन राइट, फूड वी कैन ईट, स्टोन, cloud, star, plant, animals, many things, even a small drop of water that will be also considered as a matter. Matter means matter has two property, mass as well as occupies space. Mass means it has particles, it has content, it has particle in form of maybe atom, molecules, etc. So matter just classify into two categories, pure or impure. There's a pure matter that is made up of same kind of particles, impure matter that is made up of different type of particles. So now concerning about the matter, many philosophy. According to Indian philosopher, matter classify in the basic 5 element that is known as Panch Tattva. Panch Tattva explain about the air, earth, fire, sky and water. According to them, everything living and non-living things are made up of these 5 basic elements. But according to Greek philosopher, similar classification of the matter. So now modern day scientists evolved two type of classification about the matter on the basis of physical property and chemical property. So now we'll see physical nature of matter. Matter is made up of particles. So many experiments explain about the matter is made up of. We will see in some activities, because we will take some amount of the water in a beaker and we add some salt in it, and after then some time we see that after stirring by a spoon in the beaker, all salt dissolve inside the water. So this indicates that space particle present in the water. So many other experiments that explain about matter has some space. And one another topic is how small are these particles of matter. We will take example 2 and 3 crystals of potassium permanganate and dissolve in the water, 100 ml of water. Approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of the clear water. So take 10 ml of this solution and put into the 90 ml of clear water. So keeping out solution like 5 to 10, 8 times. So now is the water still colored? This may establishing so how particles of matter. So every dilution through the color becomes light. It is still visual. So this experiment show a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves in smaller particles. So this indicates that particles present in the matter. The particle of matter is very small. They are beyond our imagination.
So this indicates that matter is made up of small imaginary particles. So next is the characteristic of particle of matter. So particles of matter है some space, like हम देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाते हैं, हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमन नेट बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है जिसकी वजह से पार्टिकल उसके बीच में डिसॉल्व हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी एक्सप्लेन करता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस है, और एक प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, जिस मूव करने की वजह से उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल के बीच जो बॉन्डिंग है थोड़ा सा लूज हो जाएगा। जैसे यू विल टेक एग्जांपल ऑफ, अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड की तरह शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं कि आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के रूप में चेंज हो जाता है। वाटर को और ज्यादा हीट करते करते 100 डिग्री पे ले जाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स और फ्री हो जाते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स के बीच रैंडमनेस आ जाती है, लूजनेस आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा देखते हैं कि व्हेन वी ऑब्जर्व ऑन हीटिंग, डिफ्यूजन बिकम फास्ट। डिफ्यूजन का प्रोसेस, मॉलिक्यूल्स के मिक्स होने का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है। और देखते हैं एक प्रॉपर्टी, पार्टिकल की ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिखाया गया कि एक ग्रुप ऑफ बहुत सारी गर्ल्स हैं, ग्रुप ऑफ दे शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशमी डांसर की तरह एक दूसरे को होल्ड करके। उसी तरह हम देखते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच अगर स्पेस बहुत कम होगा, ऑर्गेनाइज वे में होंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो उसको सॉलिड के रूप में कंसीडर करेंगे। जब लिक्विड होगा तो थोड़े से उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ट्रैक्शन कम जाएगी, उनके जो ऑर्गेनाइज होने की जो टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। गैस में क्या होगा कि उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम से मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के जो टाइप्स डिटरमाइन होने यहाँ पे। तो हम जैसा कि हम देखते हैं कि जितनी भी एक्टिविटी देखा उसमें सजेस्ट ये किया गया था कि मैटर के बीच जो पार्टिकल होते हैं वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं। अगर बहुत कम डिस्टेंस है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉलिड को कंसीडर किया, थोड़े से डिस्टेंस ज्यादा है तो लिक्विड, और थोड़े ज्यादा हैं और ज्यादा है उनसे तो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स के रूप में कंसीडर किया। लेकिन चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी कंसीडर होते हैं मैटर के अंदर। इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मैटर में कौन है। जैसे चेयर मैटर में आ रहा है, एयर मैटर में आ रहा है, लव, स्मेल, हेट जो है, थॉट, ये सब सारे नॉन मैटर, क्योंकि ये स्पेस नहीं लेते ना इनके पास मास है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। जैसे कोई जो गर्म खाना है तो बहुत दूर तक चला जाता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन की वजह से। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं एयर पार्टिकल से, और स्मेल हमारे पास चला आता है। तो एक और भी एग्जाम्पल दिया गया है कि एक और क्वेश्चन है कि जिसको आप समझ सकते हैं कि एक डाइवर जो होते हैं वाटर को आसान से स्विमिंग पूल के अंदर कट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच थोड़े से स्पेस होते हैं। और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मैटर की है जो हमने देखा था। अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट कहते हैं कि वैसा स्टेट जिसमें पार्टिकल बहुत ही कन्फाइंड तरीके से ऑर्गेनाइज रूप में सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है। उनके बीच मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें ज्यादा होते हैं, और सॉलिड के अंदर एक फिक्स शेप और साइज ऑर्गेनाइज होता है, जिसको आप देख सकते हैं कि जैसे आपने आज एक सॉलिड को देखा तो कल भी वो सॉलिड आपको मिलेगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है।
और इस तरह से देखते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम एक डेफिनेट शेप और साइज, बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम होने की वजह से उसमें एक नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल टेंडेंसी होती है, नेग्लिजिबल होते हैं वो आपस में, कि वो नेग्लिजिबल टेंडेंसी की वजह से वो कॉम्प्रेस होते हैं। कॉम्प्रेशन होने की क्षमता उसमें, कॉम्प्रेस होने की क्षमता उसमें सॉलिड में कम होती है, जबकि लिक्विड के अंदर कंप्रेस होने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। गैस में वो इससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स काफी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने से, टेम्परेचर को कम करने से उनके बीच वापस टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट ज्यादा होने की। जैसे गैस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा तो वो लिक्विड बनने की टेंडेंसी होगी, लिक्विड ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो फिर वो सॉलिड बनने की टेंडेंसी होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर टेंडेंसी होती है, और उस टेंडेंसी की वजह से हम बहुत सारे प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी वाली टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है, देन लिक्विड में होती है। लेकिन सॉलिड के अंदर कंप्रेस होने की टेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हैं, इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना कम है कि और भी अगर प्रेशर देंगे तो वो नजदीक नहीं आ सकता। हाँ, कई कंडीशन में ऐसा होगा कि हम उनको मेल्ट करके फिर से वापस एक अच्छे तरीके का सॉलिड बना सकते हैं, तो एक अलग कंडीशन होगी। लेकिन ऐसे जनरल वे में हम क्या करेंगे कि कभी भी किसी सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस के अंदर है। जैसा कि लिक्विड के कुछ बहुत सारे प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, नो फिक्स शेप और साइज है, वॉल्यूम इसका फिक्स है, बट शेप और साइज फिक्स नहीं होता। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में एक जैसी होती है। जबकि हम आप देखना चाहते हैं लिक्विड के कुछ बहुत सारे हमारे लाइफ में यूज है, लिक्विड जैसे वाटर का हमारे लाइफ में बहुत यूज है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज को डिसॉल्व कर लेता है। लिक्विड एक ऐसा कंडीशन है वाटर कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। वाटर हमारे बहुत सारे देखते हैं कि सॉल्यूशन बनाने में, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। उसी तरह हम देखते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब गैस भी है, स्पेस लेता है। बलून के अंदर देखते हैं गैस को जब भरते हैं या सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो क्या करते हैं कि गैस भी अपनी जगह पे स्पेस लेता है। कि अगर सिलेंडर के अंदर गैस भरा जाता है तो सिलेंडर के वॉल पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है चारों तरफ। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, और ऑब्जर्व करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम ज्यादा कंप्रेस करके सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते हैं जैसा कि एलपीजी आपके सिलेंडर के अंदर, घर के अंदर आते हैं, खाना बनता है, उसमें एलपीजी भरा होता है, और एलपीजी गैस के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विड के फॉर्म में कंप्रेस करके रखा जाता है। जैसे कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है तो उसको भी कंप्रेस किया जाता है। नेचुरल गैस को फ्यूल के रूप में हम अपने लाइफ में यूज करें, आज के परिवेश में, आज के कंडीशन में व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है ताकि एज ए फ्यूल ये बहुत ज्यादा कंबशन करके एनर्जी प्रोवाइड करें। तो देखते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाई कंप्रेस करके हम उसको आसानी से एक स्मॉल सिलेंडर के अंदर रख सकते हैं और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गैसियस पार्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारे देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड मिक्स होके पार्टिकल एयर के साथ स्प्रेड होके हमारे पास चला आता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स में एक डिफ्यूजन होने की प्रॉपर्टी, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर है। इनके पार्टिकल हाई स्पीड से इधर उधर मूव करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो आसानी से डिफ्यूज होके किसी गैस के साथ मिल जाते हैं, मिक्स होके हमारे पास चले आते हैं स्मेल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गैस को रोज ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जाके ऑक्सीडाइज होके फूड मटेरियल को एनर्जी देने का काम करता है। तो इस तरह से देखते हैं मैटर के पास कुछ स्टेट हैं जो आसानी से, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है।
जैसे हम देखते हैं कुछ स्टेट मैटर के कुछ स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, सॉलिड के रूप में आइस को लिया गया, लिक्विड के रूप में वाटर को लिया गया, गैस के रूप में वाटर वेपर को लिया गया। तो एग्जांपल लेंगे कि आइस को अगर हमने हीट किया तो वाटर बन गया, वाटर को बहुत ज्यादा 100 डिग्री सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया तो गैस बन गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर्स है जो सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड को ज्यादा हीट करके गैसेस फॉर्म में चेंज कर सकता है। टेम्परेचर को अगर रिवर्स कर दिया जाए, बहुत कूल कर दिया जाए, हीट निकाल दिया जाए तो गैस से वापस लिक्विड से और ज्यादा हीट कूल कर दिया जाए तो सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड को हीट कर दिया जाए तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और हीट कर दिया जाए तो गैसियस स्टेट में बन जाएगा। तो एक कंडीशन अप्लाई होगी। और हम एक चीज देखना चाहते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि अगर हम कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड एक बड़ी यूनिट है और केल्विन एक छोटा यूनिट है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में -273 अगर हम कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना चाहते हैं तो +273 करना होगा। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ वैल्यू माइनस में होगी कि माइनस अपने, जैसे एग्जांपल ले लिया -1000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको अगर केल्विन में बदलना तो -1000 डिग्री सेंटीग्रेड +273 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अब किसी सिलेंडर के अंदर हम एक पिस्टन के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि ज्यादा हम अगर प्रेशर करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल बहुत नजदीक आ जाएगा। तो प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल के डिस्टेंस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जब ज्यादा अप्लाई करते हैं और हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो गैस लिक्विफाइड हो जाता है। तो इस तरह से कई एक जो यहाँ पर इंटर कन्वर्जन दिखाएगा 3 स्टेट ऑफ मैटर को, तो देखते हैं कि अगर हम सॉलिड के अंदर हम सॉलिडिफिकेशन करना चाहेंगे तो लिक्विड के बीच प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड के रूप में चेंज हो जाएगा। उसी तरह लिक्विड को गैस के रूप में चेंज कर सकते हैं कंडेंसेशन करके, लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे वेपोराइजेशन करके, और गैस को लिक्विड में चेंज कर देंगे कंडेंसेशन करके। इस तरह से अगर देखते हैं सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस तरह से इंटर कन्वर्सन पॉसिबल है। और हम देखते हैं लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सरफेस पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि इसको ऐसे डिफाइन कर, दिस फेनोमेना चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो 4 मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हाई हीट होगा तो जल्दी से एवेपोरेशन होगा, अगर हाई अगर विंड है तो विंड स्पीड में भी क्या होगा, एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से ज्यादा कांटेक्ट पार्टिकल के साथ होगा, इसलिए जल्दी से वो एवेपोरेट हो जाएंगे। तो एवेपोरेशन का रिजल्ट है कि वो एवेपोरेशन जिस सरफेस पे होगा, जिस वेसल्स के सरफेस पे होगा, जिस सरफेस पे होगा, तो वहां पर क्या होगा, कूलिंग होगा। जैसे अगर आपके गर्मी के दिन में देखते हो कि आपके बॉडी से स्वेट्स निकलते हैं तो वो जल्दी से एवोपरेट करके क्या करेगा कि वो हमारे स्किन को बहुत ठंडा कर देगा, जिसे हम बहुत कूलिंग इफेक्ट में करेंगे। जैसे आप कई बार सैनिटाइजर आप अपने पाम पे रखते हो, ये वेपोराइज होने के बाद हमारे पाम को ठंडा फील करवाता है। तो इस तरह से एवोपरेशन के बाद रिजल्ट क्या आता है, कूलिंग का रिजल्ट आता है। जैसे आप कई बार एग्जांपल है कि वाई शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर के अंदर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, तो हमने देखा कॉटन क्लॉथ के बीच पोर्स होता है, वो आसानी से हमारे जो स्वेट्स हैं उसको आसानी से क्या करता है, एवोपरेट कर देता है और हमारे स्किन के सरफेस को वहां पर कूलिंग इफेक्ट करके डालता है। तो इस तरह से हम कई एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइसक्रीम वाटर, तो इसके आइसक्रीम वाटर के अंदर देखते हैं कि हम थोड़ी देर एकदम अगर उसको रखते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि कई बार वेपर अपना हीट को लॉस करके लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बहुत ज्यादा कंप्रेस होके और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को कम करके सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से कई चीजें ऐसे हैं कि जहां पे एवोपरेशन होगी किसी सरफेस पे वेपर बनने के बाद, वो हीट
एटमॉस्फेयर से हीट लेके और अंदर के हीट को, अपने वाटर के अंदर के हीट को लॉस कर देगा और वहाँ पर वो कूलिंग इफेक्ट को एक्सप्रेस करेगा। जैसे अर्थन वेसल में ऐसा ही होता है कि वहाँ पर एक पोर्स होते हैं जो आसानी से सराउंडिंग से हीट लेके वाटर अंदर से एवोपरेट हो जाते हैं और उस सरफेस को क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। तो जितने भी वेसल्स के अंदर वाटर है वो सारे के सारे क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस तरह के एवोपरेशन प्रोसेस हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम कूलिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं कि किस तरह का है। तो इस तरह से चैप्टर एंड होता है। आप इस चैप्टर को आसानी से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपको आगे फाउंडेशन क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जेईई मेन के लिए भी और नीट के लिए भी।